Hello guys, I welcome you all to the day 152 of our series, and in today's session we are going to learn a new couple of models, and that is may and might. So let's get started. But before we move forward, here is your yesterday's task. So let's have a look at it first. Here you were supposed to put informal synonyms, informal equivalent at this place. So it was a man in the street. It was a block. Or you can also write guy. Guy in the street. Next is who stole your pen? Who nicked? Who nicked or who pinched? Who pinched your pen? Next is he is always complaining. He is always mourning. Next is what a horrible smell. So what a vile, or you can also write disgusting. Disgusting, or you can also write obnoxious. Obnoxious smell means what an unpleasant smell. Next is he is so mean, and here we are talking mean in sense of money. That means he is very tight-fisted or stingy. Next is it was 10 pounds, it was 10 quid. Next is the film was terrible, the film was lousy. And last one is he has gone to the toilet, he has gone to the loo. Or you can also write restroom. Now let's move to the next exercise, and here you were supposed to complete the dialogues. First one is he very annoying? Yes, he is a real pain in the neck. Pain in the neck. Next is was the party enjoyable? Yes, it was a good experience, or I would say laugh. It was a good laugh. Next is did the company overcharge you? So yes, it was a rip-off. If somebody is overcharging you, that means the charge is not worth the product. Next is was the trip boring? Yes, it was a bit of a drag. Next is what a dash. Yes, it was incredibly rude, wasn't it? That means what a cheek, or what a nerve. And last one is are they having a do at the office? A do means a get together. A get together, or you can also write party. Now let's move forward, and here let's get started with our new set of models, and those are may and might. So in the introduction part, we are going to learn how are they written. Let's say she may be here tomorrow, but you cannot say that she mays, because she is our singular subject, and after a singular subject you are supposed to write singular verb complementing to them. In this case, in case of models, you can never ever add s after any model. It might rain this afternoon, and you cannot say that it might rain this afternoon. And next part is question part. In case of questions or in case of negative statements, you do not use do in the starting of your sentence as a helping verb, because we are already given helping verbs here in the form of modals, so we are going to use the same while the construction of our sentence. So may I help you is correct, but do I may help you would sound incorrect. Similarly, we might not be home after midnight is correct, but if you are going to put this as we might do not, in that case it would be incorrect. And next is after may and might, you can never use any kind of infinitive as well as any kind of gerund. If you are going to write it, you may
to be, that would be incorrect. And if you are again placing some kind of ing verb after may, after might, in that case that structure will also be incorrect. You may be right, you might not want to come with us. आप यहाँ पे ing structure नहीं use कर सकते. You might not wanting to come with us. That would highly incorrect. Next is progressive case, perfect case, and passive case. Well, if we hear this word progressive, then suddenly some kind of ing structure comes to our mind, strike our mind. Let's say he might be working late. Yes, we can use any model, not only in these may and might, we can use any model in progressive form, but after adding be in between it. We cannot use like he might working late, but we can use that he might be working late. ये हमने हमारे फर्स्ट सेशन में डिस्कस किया था कि माइट के तुरंत बाद हम ing नहीं यूज कर सकते, लेकिन अगर माइट के बाद में हमने be यूज कर दिया एज अ बफर, in that case you can easily use ing structure. ये प्रोग्रेसिव केस हो गया. परफेक्ट, परफेक्ट का नाम सुनते ही h वर्ड आता है माइंड में, सो h वर्ड यहाँ पे है have. आप डायरेक्ट आप ये नहीं कर सकते that have may, ये इनकरेक्ट हो जाएगा, लेकिन आप may have इसको इजीली यूज कर सकते हो. तो अब यहाँ देखिए क्योंकि नेगेटिव था, she may not have, and after that we are going to use third form of the verb, she may not have recognized you. Next example is of passive case, and we all know that in case of passives we usually write modals and after that b plus v1, b plus v3. So might be asked. Do you think we might be asked for our opinion? This is the example of passive statement. Now let's move forward. And here we can never use to in the starting of a modal. For example, she wants to be allowed to open a bank account. It is correct, but you cannot write it as she wants to may open. That would be highly incorrect because modals are not written in their infinitive versions. Now, here comes the second part of possibility. It is its usage. Now, we often use these modals like may and might to denote the possibility of anything, the possibility of any action to happen. For example, I think Labour are going to win, and in this statement, Labour means Labour Party. So I think Labour are going to win. You may be right means there is a possibility that you might be right. It is possible that you are right. We may go climbing in the Alps next summer. That means it is a slightest possibility that you might go climbing in the summer, in next summer. But if you put that we will go, that means you are completely sure about it. In that case, you are not talking about possibility. To talk about possibility, we usually put may or might in our statements. Next is, I am going to buy a car. In this statement also, you are completely sure that you have to buy a car, that you are going to buy a car. But if you write, I may or I might buy a car, in that case, you are talking about a possibility, not surety. Next is, where is Emma? I don't know. She may be out shopping. That means I don't know completely. There is a possibility that she is gone for shopping. But if you say that she will be out for shopping, that means we are denoting the surety part here. Next is Peter might phone. If he does, ask him to ring later. Means again there is a slightest possibility that Peter might phone. That means Peter might call. यानी कि may और might को हमेशा ही possibility के केस में हम यूज करेंगे, और अगर हमें possibility ना शो करके हमें surety को वहां शो करना है तो वहां पे आप will को यूज करोगे. वहां पे फिर may और might तक हम नहीं रह जाएंगे. नेक्स्ट है जैसे I might get a job soon. Means there is a possibility, there is not surety, there is a possibility. और सामने से रिप्लाई आ रहा है yes, and pigs might fly, कि हाँ तुम्हें जॉब मिल जाएगी. pigs might fly ये एक इडियम है जो हम पहले कर चुके हैं अपनी idioms वाली सीरीज में.
यानी कि ऐसी चीज कभी नहीं होने वाली। जब भी हम ये बोलते हैं व्हेन पिग्स फ्लाई, सो यानी कि वो चीज, वो काम कभी भी नहीं होने वाला, वो सिर्फ आपकी इमेजिनेशन है। नेक्स्ट इज यू माइट बी नीडेड एट द ऑफिस ऑन सैटरडे। It is a slightest possibility that we might require your presence at the office. यानी कि श्योरिटी नहीं है कि हमें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी ही, बस एक पॉसिबिलिटी है कि शायद तुम्हारी जरूरत पड़ जाए, तभी हमने यहाँ पे ऐड किया that you might be needed. Next is the usage of may well. May well denotes a strong possibility. यानी कि पॉसिबिलिटी है और काफी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। अगेन श्योरिटी फैक्टर फिर से नहीं है, बस स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, तो वहां पे हम मे वेल को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक इट इज गोइंग टू रेन। अगर मैं ये कहती हूँ और फिर सामने से रिप्लाई आता है दैट यू मे वेल बी राइट, द स्काई इज रियली ब्लैक, यानी कि जो स्काई है वो ब्लैक है, तो हाँ बिल्कुल काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि बारिश होगी ही। यू मे वेल बी राइट। Next is the comparison that may be ing form and might be ing form, और इसका कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पे will be ing form। अगेन मैं आपको बता चुकी हूँ अभी, जैसे may might यानी पॉसिबिलिटी और will यानी कि कंप्लीट श्योरिटी। एग्जाम्पल में देख लेते हैं कंटिन्यूअस के फॉर्म में। Don't phone means don't call. Don't call at 8:30. I will be watching the football on TV. That means it is in my schedule. It is a surety. Next is don't phone at 8:30. I might be watching the football on TV. In this case, it becomes a possibility, means perhaps. Perhaps means shayad. Perhaps means shayad. You can also use probably. It also means शायद कि शायद ऐसा हो कि मैं टीवी देखूं। नेक्स्ट है I am going to Ireland soon. अगेन will, am going to, I am about to go, ये श्योरिटी को शो करते हैं। तो यहाँ पे श्योरिटी है कि मैं जाऊंगी ही आयरलैंड, लेकिन यहाँ पे देखिए I might be going और I may be going to Ireland soon. Again we are talking about a possibility here. Similarly, might पास्ट फॉर्म हो सकता है मे की, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार माइट पास्ट फॉर्म की तरह ही यूज हो। इसका अपना रेलेवेंस भी है, इसका अपना रेलेवेंस प्रेजेंट और फ्यूचर टेंसेस में भी है। नाउ बोथ मे एंड माइट आर यूज्ड टू टॉक अबाउट प्रेजेंट और फ्यूचर, बट यहाँ पे डिफरेंस ये रहता है दैट माइट में और मे में खैर दोनों में पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन माइट में स्लाइटली लेस पॉसिबिलिटी होती है और मे में स्लाइटली मोर पॉसिबिलिटी होती है। बस इतना सा डिफरेंस होता है। तो अब यहाँ पे देखते हैं आई मे गो टू लंडन टुमारो। दैट मीन्स देयर आर अराउंड 50% चांसेस कि हाँ मैं जाऊंगी, बट इफ आई से दैट जो माइट कम विद मी, कि वो भी शायद हो सकता है मेरे साथ आ जाए, यहाँ पे हमने माइट को यूज किया। दैट मीन्स यहाँ पे जो चांसेस हैं वो मे के कंपैरिजन में काफी लो हो गए। नेक्स्ट है टिपिकल अकरेंसेस, मीन्स किसी भी एकेडमिक लैंग्वेज के केस में या फिर किसी भी साइंटिफिक एग्जाम्पल में हम मे को इजीली यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये रहेगा दैट माइट इज ओनली यूज्ड इन दिस वे टू टॉक अबाउट पास्ट। यानी कि साइंटिफिक और एकेडमिक अगर हम कोई बात कर रहे हैं वहां पे हम यूजुअली मे को यूज करेंगे, और वहां पे माइट को तभी यूज करेंगे जब हमें पास्ट को शो करना हो। लेट्स हैव एन एग्जांपल। After having a baby, a woman may suffer from depression for several months, and it is a scientific fact. In that case, we have used here may. अगर मुझे ये पास्ट में शो करना होगा, यहाँ पे a woman की बजाय किसी पर्टिकुलर लेडी का एग्जाम्पल देके that my mother or my I would say that my मासी might suffer, means कि कि मैं यहाँ पे अभी पास्ट की बात कर रही हूँ। Next is the flowers may have 5 or 6 petals. The color may range from light pink to dark red. Again, may यहाँ पे जो है ये academic purpose शो कर रहा है कि हमने यूजुअली ऐसा पढ़ा है कि किसी भी फ्लावर में यूजुअली 5 और 6 पेटल होते हैं। नेक्स्ट है children of divorced parents may have difficulty in forming stable relationship themselves. यहाँ पे अब ये पॉसिबिलिटी वाला केस नहीं है, क्योंकि अगर वो पॉसिबिलिटी वाला होता तो यहाँ पे हम माइट को भी इजीली यूज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे ये केस है साइंटिफिक फैक्ट वाला, तो इस वजह से यहाँ पे आप माइट को नहीं यूज कर पाओगे। इन दोज डेज अ मैन माइट बी हैंग्ड फॉर स्टीलिंग अ शीप।
और यहाँ पे हमने might को यूज किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है पास्ट की। इन दोज डेज, उन दिनों में, बीते दिनों में क्या होता था कि किसी पर्सन को फांसी दे दी जाती थी एक शीप चुराने के इल्जाम में भी, इतने छोटे से केस में भी उनको फांसी दे दी जाती थी। अब यहाँ पे क्योंकि पास्ट है, इस वजह से माइट को यूज किया है, ना कि पॉसिबिलिटी में। नेक्स्ट इज क्वेश्चन फॉर्मेशन। May is not normally used in direct questions about probability. May से हम डायरेक्टली क्वेश्चंस को नहीं स्टार्ट करते। अब देखिए यहाँ पे पॉसिबिलिटी के केस में, अब एक क्वेश्चन ये है, आर यू लाइकली टू गो कैंपिंग दिस समर? लाइकली मीन्स पॉसिबिलिटी। अगर मैं किसी से पूछूं कि इन गर्मियों में क्या आप कैंपिंग के लिए जाओगे, दैट मीन्स आर यू गोइंग और आर यू लाइकली टू गो कैंपिंग दिस समर, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बट अगर मैं ये कहूँ दैट मे यू गो कैंपिंग, अब यहाँ पे बिल्कुल गलत हो जाएगा। मे यू, देखिए आपने अक्सर सुना होगा मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, और मे यू बी ब्लेस्ड, मे यू बी ब्लेस्ड, ये पैसिव फॉर्मेशन है। तो अब यहाँ से आप क्या अंदाजा लगा सकते हो कि जब हम मे से स्टार्ट करते हैं, मे दिस हैपन्स टू यू, यानी कि हम वहां पे अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, हम ये विश कर रहे हैं कि काश ऐसा हो आपके साथ में। तो यहाँ पे अगर आप ये कहते हो मे यू गो कैंपिंग, दैट मीन्स आप अपनी ब्लेसिंग उसको दे रहे हो कि हाँ आप ऐसे चले जाओगे, तो इस वजह से ये इनकरेक्ट हो जाएगा। जैसे हम बोलते हैं ना मे यू लिव लॉन्ग, तो इसी तरह से आप ये नहीं कह सकते दैट मे यू गो कैंपिंग, वो इनकरेक्ट हो जाएगा। इसी वजह से ऐसे केसेस में इज, एम, आर या फिर डू, डज, इनसे हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। नेक्स्ट इज डू यू थिंक एमा हैज गॉन शॉपिंग? अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि तुम्हें क्या लगता है एमा शॉपिंग पे गई हुई है? तो यहाँ पे अगर ये होता मे एमा हैव गॉन शॉपिंग, तो अगेन वही केस हो जाता ब्लेसिंग का, क्या ब्लेसिंग दे रहे हो कि वो शॉपिंग पे जाए, तो ये इनकरेक्ट है। डू यू थिंक एमा हैज गॉन शॉपिंग, यहाँ पे हम डू से स्टार्ट करेंगे, वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज बट मे इज पॉसिबल इन नेगेटिव क्वेश्चंस। अब देखिए नेगेटिव क्वेश्चंस को हम बना सकते हैं मे से, ये क्योंकि हाईली फॉर्मल लैंग्वेज हो जाएगी, जैसे मे वी नॉट बी मेकिंग अ मिस्टेक। और ये क्यों बना सकते हैं? क्योंकि आप कभी भी मे और नॉट को यूज करके ब्लेसिंग नहीं देते हो। मे यू नॉट बी हैप्पी, आप ये कभी नहीं बोलोगे, दैट्स व्हाई मे वी नॉट, मे यू नॉट, इस तरह से हम नेगेटिव जो क्वेश्चंस हैं वो बना सकते हैं। नेक्स्ट है may is possible in indirect questions। जैसे अगर ये आ गया do you think, अब do you think एक्चुअल में तो क्वेश्चन do से ही स्टार्ट हो रहा है ना, उसके बाद में आप आराम से may को यूज कर सकते हो, लेकिन may से आप स्टार्टिंग नहीं कर सकते क्वेश्चन की। do you think you may go camping this summer, अब यहाँ पे ऑब्वियसली पॉसिबिलिटी की बात हो रही है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम जा पाओगे, क्या पॉसिबिलिटी है इस चीज की। जैसे देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में do you think, क्या आपको लगता है Emma has gone shopping, so do you think Emma might have gone to shopping, आप ये भी बोल सकते थे might have gone shopping, आप ये भी यूज कर सकते थे। मीन्स मे से आप क्वेश्चन स्टार्ट नहीं कर सकते, वो डू से करना पड़ेगा, बीच में इसको इंसर्ट कर सकते हो। नाउ कम्स द पार्ट ऑफ नेगेटिव्स। नेगेटिव फॉर्म आप देखिए मे नॉट, माइट नॉट, ये हो जाएंगे हमारे नेगेटिव स्ट्रक्चर्स। लेकिन यूजुअली आपने देखा होगा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स में हम नॉट को यूज करते हैं। तो देखिए कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म जैसे ये है, इज नॉट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हो जाती है इजंट, इसी तरह से कैन नॉट की कांट, इस तरह से कुड नॉट की कुडंट। तो क्या मे नॉट की मेंट ये हो सकती है? ये इनकरेक्ट है। मे नॉट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म मेंट नहीं होती, अनयूजुअल, दैट मीन्स नॉट वेरी कॉमन, इसको नहीं यूज किया जाता। हाँ लेकिन माइट नॉट की माइटेंट, हाँ ये हम कर सकते हैं यूज, लेकिन मेंट आप नहीं यूज कर सकते। हम देखिए एमी मे नॉट गो आउट, शी इजंट फीलिंग वेल, मे नॉट मीन्स की पॉसिबिलिटी आ गई यहाँ पे फिर से कि वो शायद ना जाए। There might not be enough time to discuss everything at the meeting, मीटिंग में हो सकता है कि इतना ज्यादा टाइम ना हो हमारे पास कि हम एक एक चीज को डिस्कस कर सकें, तो might not be। एक और केस हम यहाँ पे देख लेते हैं, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट केस है ये, थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे कि मे और माइट के साथ में हम नॉट यूज करते हैं तब, और कैन के साथ में जब हम नॉट यूज करते हैं तब, इन दोनों में थोड़ा सा एक डिफरेंस है। देखते हैं, अगर मैं कहती हूँ दैट इट मे और माइट नॉट बी ट्रू,
इसका मतलब ये जा रहा है कि ये पॉसिबल है कि शायद जो भी कहा गया है वो ट्रू ना हो, वो सच ना हो। लेकिन अगर मैं ये कहती हूँ दैट इट कांट बी ट्रू, तो ये तो सर्टेन है, इट इज नॉट पॉसिबल दैट इट इज ट्रू मीन्स यहाँ पे कांट में अगेन मीन्स सर्टेनिटी आ जाती है, यहाँ पे श्योरिटी आ जाती है, सर्टेनिटी की ये तो सच हो ही नहीं सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि ये बात सच हो जाए। लेकिन मे और माइट अगेन पॉसिबिलिटी रहती है यहाँ पे। अब आते हैं हमारे लास्ट पार्ट में, वोकैबुलरी पार्ट में। अगेन आज हम इनफॉर्मल वर्ड्स को यूज करने वाले हैं। So let's get started. The first word is darling और love. आपको इनका मीनिंग पता है, ये हम किसी ऐसे पर्सन को एड्रेस करने के लिए यूज करते हैं जो हमसे बहुत ज्यादा अटैच्ड हो, जिसकी हम बहुत ज्यादा केयर करते हो, और ये एक फ्रेंडली मैनर में उनको कहा जाता है। नेक्स्ट है ओके एग्जाम्पल, डार्लिंग हैव वी गॉट एनी एग्स, व्हाट वुड यू लाइक, लव। यहाँ पे लव भी आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है ब्रॉक, ब्रॉक मीन्स टू बी पेनीलेस, टू बी पेनीलेस यानी कि कंप्लीटली आपके पास कोई भी रुपए नहीं है, आप कंप्लीटली पूरी तरह से दिवालिया हो चुके हो। तो इसके लिए एक और सिनोनिम हो जाएगा पेनीलेस के अलावा इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट यानी कि दिवालिया हो चुके हो। नॉट हैविंग एनी मनी, इसके लिए आप एक और सिनोनिम यूज कर सकते हो एंड दैट इज पॉवर्टी स्ट्राइकन, पॉवर्टी स्ट्राइकन, STRICKEN, पॉवर्टी स्ट्राइकन। इसके लिए एक और आप सिनोनिम यूज कर सकते हो एंड दैट इज इम्पॉवरिश्ड, इम्पॉवरिश्ड कि आपके पास मनी नहीं है बिल्कुल भी। इसके लिए एक इडियम या फिर एक फ्रेज यूज होता है एंड दैट इज डाउन एंड आउट, डाउन एंड आउट, और इसका मीनिंग यही होता है कि आपके पास अभी रुपए नहीं बचे हुए। तो इतने सारे हमने अभी सिनोनिम्स किए। एक ये भी हो सकता है पेन्यूरियस, पेन्यूरियस आप ये भी यूज कर सकते हो। रुइंड कि मैं तो बर्बाद हो गई, पैसे ही नहीं है मेरे पास, रुइंड। इसके अलावा खैर बहुत हो गए। I'm completely broke, I'm completely penurious, I'm completely ruined, I'm completely bankrupt, I'm completely insolvent, I'm completely down and out, कोई भी आप इनमें से यूज कर सकते हो। नेक्स्ट इज starving, starving मीन्स बहुत ज्यादा भूख लगी है, और dying to eat for something, or you can also say that craving, craving to eat for something, ये आप यूज कर सकते हो। और इसके अलावा starving के अलावा आप ये भी यूज कर सकते हो famished, आई एम famished, इसका भी वही मीनिंग हो जाता है कि भूख लगी, आई एम hungry। इसके अलावा आप ये भी यूज कर सकते हो दैट आई एम ravenous, आई एम ravenous, VRAVENOUS। नेक्स्ट में आते हैं किप, किप मीन्स खाने के बाद में एक जो यूजुअली एक जो छोटी सी स्लीप होती है, एक जो छोटी सी झपकी होती है, उसके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं किप। और स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं कि लंच के बाद में जो हम आराम करते हैं, लंच के बाद में जो आराम करते हैं, जो दोपहर की नींद होती है, दोपहर की नींद के लिए एक और वर्ड यूज होता है दैट इज सिएस्टा, सिएस्टा SIESTA दोपहर की नींद के लिए यूज होता है। और अगर मैं ये कहूँ कि मुझे तो झपकी आ गई थी, तो उस झपकी के लिए एक इडियम यूज होता है दैट इज 40 wings, 40 wings झपकी के लिए हम यूज करते हैं, लेकिन इनफॉर्मल के केस में किप एक छोटी सी स्लीप। सो आई माइट हैव अ किप आफ्टर लंच, की लंच के बाद में हो सकता है कि मैं एक छोटी सी नींद ले लूं। नेक्स्ट इज पॉश, पॉश यानी कि एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, बहुत महंगा हो और बहुत ही सुंदर हो, एलिगेंट। दे स्टेड इन अ वेरी पॉश होटल, ये यूजुअली किसी बिल्डिंग, किसी एरिया के बारे में हम यूज करते हैं। नेक्स्ट इज नॉजी, इसको हम ई लगा के भी लिख सकते हैं, और इसका मीनिंग हो जाता है कि वो पर्सन जो आपके पर्सनल मैटर्स में काफी इंटरेस्टेड रहता हो। हम बोल सकते हैं दैट अ नोजी नेबर, यानी कि कोई ऐसा नेबर जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहता है ये जानने के लिए कि आपकी पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है, वहां पे उन लोगों को हम एड्रेस करते हैं इस एडजेक्टिव से। आई एम केयरफुल व्हाट आई से टू कैथ,
शी इज वेरी नॉजी। नेक्स्ट है बग। बग मीन्स यूजुअली जब हम बीमार होते हैं तो वहां पे भी हम ये बोल सकते हैं बग। शी picked a bug on holiday, or I have picked a bug, I might not come tomorrow. Next है be into something, that means be interested into something, be interested into doing something. कोई आपकी हॉबी है, कोई आपका इंटरेस्ट है, वहां पे आप इसको यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए दे आर बोथ इंटू एक्सट्रीम स्पोर्ट्स, कि एक्सट्रीम स्पोर्ट्स खेलना उनकी हॉबी है, वो काफी इंटरेस्टेड रहते हैं इस चीज में। नेक्स्ट इज हैमर समबडी, और आप ये भी यूज कर सकते हो थ्रैश somebody, यानी कि यूजुअली स्पोर्ट्स के केस में ही इसको यूज किया जाता है, यानी कि बुरी तरह से हरा देना सामने वाले को। defeat somebody very heavily, जैसे कि our team got absolutely hammered yesterday। अब यहाँ पे देखिए क्योंकि ये पैसिव में यूज हुआ है, got hammered, यानी कि हमें हरा दिया गया बुरी तरह से। नेक्स्ट इज con somebody. Con means to deceive, to trick, धोखा देना किसी को ट्रिक कर लेना, किसी को ठग लेना, वहां पे हम इसको यूज करते हैं con। con को वर्ब की तरह से भी यूज कर सकते हैं, यानी कि किसी को धोखा देना, और con एक नाउन की तरह भी यूज हो सकता है, यानी उस पर्सन के लिए भी हम यूज कर सकते हैं ये, that he is a con और he is a con man। I think that builder conned us, यानी कि हो सकता है मुझे ऐसा लग रहा है कि उस बिल्डर ने हमें धोखा दिया है। नेक्स्ट इज फ्लैग। फ्लैग मीन्स क्रिटिसिज्म, काफी हार्श क्रिटिसिज्म करना, निंदा करना किसी चीज की। स्टिक, ये भी आप यूज कर सकते हो। ही हैज टेकन अ लॉट ऑफ फ्लैग ओवर दिस इशू, यानी कि इस इशू के मामले में उसको बहुत ज्यादा निंदा मिल चुकी है, उसको बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिल चुका है। नेक्स्ट इज डैफ्ट। डैफ्ट मीन्स बेवकूफी भरी कोई बात हो। सिली, देखिए इट वॉज रैदर अ डैफ्ट थिंग टू से, यानी कि वो बात मुझे लगता है कि वो बेवकूफी भरी बात थी कहने के लिए। नेक्स्ट इज टैम, ये हम यूजुअली थैंक्स के लिए भी बोलते थे कई बार। नेक्स्ट इज डॉजी। अब डॉजी यानी कि अनरिलायबल, अनरिलायबल विच कैन नॉट बी ट्रस्टेड, इन्वॉल्विंग रिस्क, जहां पे रिस्क हो। तो देखिए कॉजिंग सस्पिशन, सस्पिशन यानी कि संदेह जो उत्पन्न करे, जो डिसऑनेस्ट हो, जिसमें रिस्क हो, वहां पे हम इसको यूज करते हैं डॉजी। हिज आइडिया साउंड्स अ बिट डॉजी। नेक्स्ट इज लेड बैक। लेड बैक यानी कि कोई पर्सन है काफी शांत स्वभाव का पर्सन है, वहां पे हम इसको यूज करते हैं। काम्ड एंड रिलैक्स्ड, इजी गोइंग, ये इसके सिनोनिम में हम यूज कर सकते हैं laid back के केस में। he is very laid back, he is very easy going, he is very calm and relaxed, he is very composed, he is very even tempered, he is very even tempered। and last one is racket। अब racket का एक मीनिंग होता है illegal trade, उसके अलावा racket का मीनिंग ये भी होता है काफी noise, a large amount of noise, काफी ज्यादा आवाज आना, काफी नॉइज आना, और इसका सिनोनिम हो जाएगा डेन। तो यहाँ पे देखिए व्हाट अ टेरिबल रैकेट, यानी कि यहाँ पे ऑब्वियसली नॉइज की बात हो रही है। और ये है आपका टास्क, ये आपको परफॉर्म करना है। सेकेंड टास्क हो गया आपका, और ये थर्ड टास्क। और इसके अलावा ट्राई टू फाइंड सम मोर यूजेस ऑफ मे और माइट। सो गाइज, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग।